Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to decode the Hindu newspaper dated 29th of July 2021. आज हम 29th जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर डिकोड करने जा रहे हैं and I hope you all must have read the newspaper yourself by now, and now we are going to analyze it and make sure that you keep noting down the important facts that we are going to discuss. जो भी important facts हम discuss करने जा रहे हैं, make sure कि आप उसको note down करते रहो, because if you note them down, that will help you to revise faster. आपकी रिवीजन बहुत जल्दी हो जाती है अगर आप नोट डाउन करते हो नोट्स को, क्लास के साथ साथ छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाते जाते हो. दैट इम्प्रूव्स योर रिवीजन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले. ऑल्सो द क्लास PDF विल बी अपलोडेड ऑन माई टेलीग्राम चैनल विच इज सिंप्लीफाइंग UPSC विद ईज. तो सिंप्लीफाइंग UPSC विद ईज टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको क्लास के सारे नोट्स मिल जाएंगे. लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डू डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से, ठीक है. So we are going to first start with a very important article that is on page number 1. Open up your newspaper. Page number 1 पे आप जाओगे, एक बहुत important article है, that is no immunity for acts of vandalism says a Supreme Court. I'll show you the article also. Here you go. ये रहा आपका article. This is on page number 1. No immunity for acts of vandalism says Supreme Court. So Supreme Court has held that the lawmakers cannot indulge in criminal acts on the Parliament or assembly floors and then take cover behind the right to free speech. Here right to free speech is very important point. यहाँ पर एक बहुत important point आता है, right to free speech. ठीक है, ये point काफी important है. Now Kerala government submitted a petition to withdraw prosecution of top left Democratic Front leaders who were accused of vandalism and destruction of public property. So Supreme Court disallowed it. Supreme Court ने refuse कर दिया. Supreme Court ने कहा कि vandalism जो है उसके प्रति कोई protection नहीं मिलेगी हमारी तरफ से आपको, ठीक है. तो here the MLAs in the Kerala Assembly had vandalized Speaker's dais, uprooted his chair, pulled out the mic system and computer in 2015. 2015 में क्या हुआ था, MLAs जो थे केरला असेंबली में, उन्होंने स्पीकर के डायस पे चढ़ के चेयर को फेंक दिया, माइक फेंक दिया, कंप्यूटर फेंक दिया. एंड केरला गवर्नमेंट हैड साइटेड प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज टू MLAs. केरला गवर्नमेंट बोलने लगी कि भाई MLAs को जो इम्यूनिटी और प्रिविलेजेस मिलती है उसकी वजह से आप इस केस को ड्रॉप कर दो. सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त की, बट सुप्रीम कोर्ट डिसअलाउड इट. ओके, Kerala government was claiming immunity from criminal prosecution of those MLAs, but Supreme Court denied it, rejected it. Supreme Court ने dismiss कर दिया and made it very clear. Supreme Court ने बहुत clearly कहा, destruction of public property in the house cannot be equated with freedom of expression, and immunity to legislators cannot be extended as immunity against criminal law. जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ते हो, तोड़फोड़ मचाते हो सदन में, उसको हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं बोलते भैया. ये कौन सी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जहां आप नुकसान पहुंचाने के इरादे से या डराने के इरादे से चीजों को तोड़-फोड़ रहे हो, ठीक है. और कहा कि इम्यूनिटी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, वैंडलिज्म जो है उसके प्रति प्रोटेक्शन तो कभी कतई नहीं देंगे हम आपको. ओके, सो हियर दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. Now here we have to study Prevention of Damage to Public Property Act 1984. First of all, let us understand what is a public property. Public property means any building, any installation or other property which is used in connection with production, distribution or supply of water, light, power or energy. कोई oil installation, कोई sewage works, कोई mine और factory, कोई भी तरीके के ऐसी वर्क, ऐसी चीजें जो कि बिल्डिंग से रिलेटेड है, जहाँ पब्लिक का टैक्स भी लग रहा है जिसको बनाने में, ठीक है. तो अब ये सदन जो बना है इसकी कैसे बना है, पब्लिक के टैक्स से ही तो बना है, ठीक है. सो व्हाट द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 सेज, इट पनिशेस एनीवन हु कमिट्स मिसचीफ बाय डूइंग एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पब्लिक प्रॉपर्टी. यहाँ पर जेल की सजा मिल जाती है 5 साल तक की, फाइन भी हो सकता है, ठीक है. और इसके अंदर आपको 2 कमिटीज के बारे में पढ़ना है, एक है थॉमस कमिटी, एक है नरीमन कमिटी. इन 2 कमिटीज के बारे में जरूर पढ़िएगा. ओके, now Supreme Court also passed another statement. Supreme Court said privileges are not a mark of status which allow legislators to stand on a different pedestal. ऐसा नहीं है हमने privileges दिए हैं अगर MLAs को, इसका मतलब ही नहीं ये status है, status symbol है उनका, नहीं, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट याद रखना GS पेपर 2 and 4 के लिए. ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, व्हाट इज कंटिंजेंट वर्कर, हाई कोर्ट आस्क ट्विटर. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल.
ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपका जीएस पेपर 4 के पर्सपेक्टिव से, एसए के पर्सपेक्टिव से। So the Delhi High Court expressed a displeasure over Twitter Incorporation appointing a contingent worker as Chief Compliance Officer. Contingent worker को Chief Compliance Officer की पोजीशन पे अपॉइंट कर दिया Twitter Incorporation ने, ओके और कहा कि सोशल मीडिया साइट वाज नॉन कंप्लाइंट विद द न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स। सो व्हाट इज दिस कंटिंजेंट वर्कर? देखो, एक तो आप हमारे रूल्स जो आईटी रूल्स हैं उनसे कंप्लाई नहीं कर रहे, ऊपर से चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की पोजीशन पे कंटिंजेंट वर्कर को बिठा दिया। ये कंटिंजेंट वर्कर क्या होता है? तो हाई कोर्ट ने कहा कि व्हाट इज दिस कंटिंजेंट वर्कर, वी डोंट नो व्हाट इज दिस कंटिंजेंट वर्कर, वी हैव अ प्रॉब्लम विद द वर्ड, ओके। सो कंटिंजेंट मींस कि फॉर फ्यू आवर्स और फॉर फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स यू आर ट्राइंग टू रिप्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन with a temporary person. So what is this contingent worker? That was asked by Delhi High Court and they also refused the affidavit filed by Twitter. Okay? Unacademy start कर रहा है mentorship week. यहाँ पर 29 जुलाई से 4 अगस्त तक आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच। अगर आप सब्सक्राइब करते हो अनअकैडमी प्लस पर इस मेंटरशिप वीक में, तो आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच जो आपको पूरी यूपीएससी जर्नी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक आपको सही मार्ग पे रखेगा, सही स्ट्रैटेजीज बताएगा। आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा मेंस तक, प्रीलिम्स मेंस का, प्रीलिम्स की भी तैयारी कराई जाएगी, मेंस की भी, और आप क्लासेस एक्सेस कर सकते हो आपके मेंस के अटेम्प्ट तक। आपको ऑप्शनल कोर्सेज भी आपके मिलेंगे, जो भी आपका ऑप्शनल है उसका बैच आपको मिलेगा, ठीक है, विच इज वर्थ ₹27,500, बट आपको सिर्फ 2,000 रुपीज में आपकी ऑप्शनल की कोचिंग मिल रही है। प्रीलिम्स मेंस और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज वर्थ ₹45,000 की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो अनअकैडमी प्लस पर, तो आपको सीएसई अश्योर भी मिल रहा है। मतलब अगर आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं हो तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी प्लस की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। ये सब कुछ आपको इस मेंटरशिप वीक में मिलने वाला है, यानी कि अगर आप सब्सक्राइब करते हो अनअकैडमी प्लस पर 29 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में, कोड यूज करते हो अर्पिता 10 तो मिलता है 10% डिस्काउंट, और सब्सक्राइब करते हो 29 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में तो आपको ये सारे फैसिलिटीज मिलेंगे एट मिनिमम अमाउंट। देख लीजिए, ऑप्शनल जो 27,500 का है बैच, वो आपको सिर्फ 2,000 रुपीज में मिल रहा है। कवरेज आपको मिल रही है क्लास की एक्सेसिबिलिटी मेंस तक की। पर्सनल कोच जो प्रीलिम्स और मेंस तक आपको इंडिविजुअल अटेंशन देगा और स्ट्रैटेजी बताए रखेगा, आपको सही मार्ग पे रखेगा। और प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, प्लस अर्पिता 10 कोड यूज करके 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो कोड, ये जो सारे बैचेस हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं हमारे, उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप आज ही सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी प्लस पर और पाइए मेंटरशिप वीक के maximum advantages. Next article is PM to roll out academic credit bank. So on the first anniversary of National Education Policy, the center plans to officially roll out some initiatives promised in the policy, such as the credit transfer system that will allow multiple entry and exit options in higher education as well as regional languages. नाउ ओवर हियर पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, लास्ट ईयर निकाला था इसको। अब इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स हैं, उनमें से जो रिफॉर्म्स प्रोविजंस है इस पॉलिसी के, उसमें से कुछ प्रोविजंस अब इंप्लीमेंट किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम है, ठीक है, academic bank of credit, it will be rolled out for students in over 290 top institutions from the current academic year 2021 to 22। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। This article is related to GS paper 2। Now ये जो क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम है उससे होगा क्या, हायर एजुकेशन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स जो है रीजनल लैंग्वेजेस में आप मल्टीपल एंट्री कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, आपके ऊपर है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंट्री और एग्जिट पर। Then there is multidisciplinarity which is also being encouraged with guidelines to be issued shortly। इससे क्या होगा, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को मर्ज कर दिया जाएगा ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको सब्जेक्ट्स, डिफरेंट वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स लेने की चॉइसेस मिल सके। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को स्टैब्लिश किया जाएगा, जिससे डिजिटली टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटीज को फैसिलिटेट करवाया जाएगा। और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम के माध्यम से, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके माध्यम से क्या होगा कि फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज को फैसिलिटेट करवाया जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये है आपके बोल सकते हो पॉइंटर्स इन दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी।
Next important article, Chandrayaan 3 mission likely late next year. So here the Chandrayaan 3 mission is likely to be launched late next year. Chandrayaan 3 is likely to be launched during the third quarter of 2022. एक बार जब कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है ये थोड़ा सा शांत हो तो नेक्स्ट ईयर 2022 में लास्ट जो क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर जो होगा, सेकेंड लास्ट क्वार्टर, तब इस मिशन को लॉन्च करने की बात की जा रही है. Now let us understand what is this Chandrayaan 3. सबसे पहले ये समझ लेते हैं, प्रीलिम्स के लिए this is important. Chandrayaan 3 is ISRO's third mission to moon. ठीक है, चंद्र means moon, यान means vehicle. So it is the third mission of ISRO to moon. You have to remember it, and it is going to target a soft landing near the lunar south pole of the moon. मून का, राइट इट डाउन, द लूनर साउथ पोल जो है वहां पर इस व्हीकल को लॉन्च, इस व्हीकल को लॉन्च किया जाएगा. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट विल इंक्लूड ओनली अ लैंडर एंड रोवर. जैसे कि चंद्रयान 2 में एक लैंडर और रोवर था ना, वैसा ही लैंडर और रोवर जो है या इसमें चंद्रयान 3 में भी डाला जाएगा. एंड चंद्रयान 3 लैंडर, ये जो लैंडर होगा ना चंद्रयान 3 का, जो लैंड करवाएगा सरफेस पे, इट विल बी इक्विप्ड विद अ, राइट इट डाउन, laser Doppler, write it down, laser Doppler velocimeter, okay, which is known as LDV. So it is like a measurement system. जितने भी लाइट के पार्टिकल्स है ना मून के सरफेस पे, उसको मेजर करेगा लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर. ओके, सो चंद्रयान 3 takes cues from the first Chandrayaan mission which was launched in 2008 in October month, and it is going to find evidence of water on the lunar surface. Okay, coming on to the next important article, Parliament passes bills amid din. So both houses of Parliament have cleared important bills without debate. So first bill that has been cleared is Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill 2021. Let us understand the meaning of insolvency. Insolvency is a situation where individuals or companies are unable to repay their outstanding debt. जो बचा हुआ उधार है ना, जब कंपनीज या इंडिविजुअल नहीं पे कर पाती उसे, तो उन्हें हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं. बैंक्रप्सी की सिचुएशन क्या होती है? जहां पर बैंक एक कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन डिक्लेयर कर देती है, कोर्ट या बैंक डिक्लेयर कर देती है कि भैया ये जो बंदा है कंप्लीटली इंसॉल्वेंट है, इससे अब एक वेला भी नहीं आने वाला, एक पैसा भी नहीं आने वाला. ठीक है, यानी कि अब ये अनेबल है ये अपने डेट्स पे करने में, ये पे ही नहीं कर सकते अपने उधारी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैंक्रप्सी. ठीक है. नाउ दिस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी अमेंडमेंट बिल 2021, इट इंट्रोड्यूसेस एन ऑल्टरनेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जाए एमएसएमई एंटरप्राइजेस में, उस तरीके का एक प्रोसेस, रेजोल्यूशन प्रोसेस इस बिल के अंदर ऐड किया गया है. ठीक है, विद डिफॉल्ट अप टू ₹1 करोड़. जो एमएसएमईज हैं 1 करोड़ तक का पैसा नहीं पे कर पाए हैं, उनके लिए एक रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टैब्लिश किया गया है जिसको हम बोलते हैं प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, विच इज ऑल्सो नोन एज पर्प. ओके, सो व्हाट इज पर्प? पर्प इज अ प्री पैक विच इज अ रेजोल्यूशन ऑफ द डेट ऑफ अ डिस्ट्रेस्ड कंपनी थ्रू एन अग्रीमेंट. क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में एक अग्रीमेंट किया जाएगा, बिडिंग प्रोसेस के बजाय, यानी कि बोली लगाने के बजाय एक अग्रीमेंट तय कर दिया जाएगा क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में. ठीक है, अब दिस सिस्टम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैज बिकम एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर मैकेनिज्म फॉर insolvency resolution in UK and Europe, and we have copied that. We have also used the same process. Pre-packs are largely aimed at providing MSMEs with an opportunity to restructure their liabilities. मतलब जो भी उधारी है उनके ऊपर, उसको restructure किया जाए. कौन सी उधारी सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, कौन सी ज्यादा इतनी क्रिटिकल नहीं है कि आप बैंकरप्ट सिचुएशन में आ जाओ. ठीक है, एंड देन धीरे धीरे एक एक करके उस लाइबिलिटी को हटाने की कोशिश की जाए और उनको हेल्प की जाएगी उस लाइबिलिटी को हटाने के लिए. ओके, पॉइंट क्लियर हो गया? सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. ये थी आपकी आज का लेक्चर. अलग से हम इंसॉल्वेंसी बिल के ऊपर एक लेक्चर तैयार करेंगे ताकि आप डिटेल में उसे समझ सकें. ठीक है, ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द क्लास. थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द सेशन.